guys, I welcome you all to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is duties of a bailor. Guys, we are discussing contract of bailment and so far I have only covered basics of contract of bailment. I have covered section 148 of the Indian Contract Act, which gives us an insight into the contract of bailment. Then we have discussed various essential elements for a contract of bailment to be a valid one, and then I have discussed various kinds or types of bailment. So guys, if you are here in this video and you have not watched all those videos, please go and watch them first, because those videos basically will form your basis of the entire contract of bailment. And guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with duties of a bailor. Guys, I hope everybody in this video is very well aware of who the bailor is. नहीं पता तो आपको प्रीवियस वीडियोस देख लेनी चाहिए. अब हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर्टेनिंग टू ड्यूटीज ऑफ अ बेलर. First is section 150, then 159, then 164 of the Indian Contract Act. सबसे पहली and the most important duty of a bailor is that he is duty bound. Bailor is duty bound to disclose faults in the goods bailed. Guys, यहाँ पे section 150 में हमें 2 चीज़ों को समझना है and then this section will be completed. सबसे पहले तो यहाँ पे फॉल्ट्स का क्या मतलब है, बिकॉज नॉट एवरी फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड इज टू बी डिस्क्लोज्ड. वन थिंग इज फॉर श्योर कि हर एक छोटी, हर एक नॉर्मल और समथिंग विच इज नॉट सब्सटैंशियल, अनसब्सटैंशियल, वेरी ऑर्डिनरी, नॉट एबनॉर्मल, हर एक फॉल्ट को बताना, हर एक फॉल्ट को डिस्क्लोज करना इज नॉट द ड्यूटी ऑफ अ बेलर. So what kind of faults are to be disclosed by the bailor to the bailee, और अगर वो उन faults को disclose नहीं करेगा तो क्या होगा, उस चीज़ को हम समझेंगे. और फिर हम ये भी समझेंगे गाइस कि सेक्शन 150 इज डिवाइडेड इनटू 2 पैराग्राफ्स. 150 सेक्शन 150 इज डिवाइडेड इनटू 2 पैराग्राफ्स. पैराग्राफ नंबर 1 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ अ ग्रेटिशियस बेलर एंड पैराग्राफ नंबर 2 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ अ नॉन ग्रेटिशियस बेलर. आई होप आपको पता होगा कि ग्रेटिशियस एंड नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट क्या होती है. अगर नहीं पता, अगेन गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन काइंड्स ऑफ बेलमेंट, आपको वहाँ पे समझ आएगा. सो गाइज, सेक्शन 150 टॉक्स अबाउट basically differentiating factor between duties of a gratuitous and non-gratuitous bailor. Gratuitous bailor is a bailor, a person who bails his goods free of cost, without any consideration, without any reward. यानी कि goods are not bailed on hire. आप किसी से पैसा नहीं लेते हो अपनी goods को bail करने के लिए. On the other hand, non-gratuitous bailor is a bailment for reward, for consideration, something in return आपको मिलता है. आई होप यू गेटिंग इट. तो गाइज, अगर मैं आपको सबसे पहले बिल्कुल प्रिसाइजली हिंदी में समझाऊं कि सेक्शन 150 क्या बोलता है, उसका पैराग्राफ नंबर 1 बोलता है कि जो ग्रेटिशियस बेलर होता है, जो इंसान फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी चीज़ों को बेल करता है टू द बेली, ही इज ड्यूटी बाउंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 150 दैट ही हैज़ टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड. लेकिन वही फॉल्ट्स को वो डिस्क्लोज करेगा जो उसको पता है. जिस चीज़ का बेलर को खुद को ही नहीं पता कि मेरी चीज़ में ये फॉल्ट है, उस चीज़ को डिस्क्लोज करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, अगर बेलर को नहीं पता कि जो मैंने गुड बेल करी है टू द बेली उसमें ये फॉल्ट है, अगर उसे नहीं पता इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट, तो वहाँ पे ही इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज दोज फॉल्ट्स. सेक्शन 150 बोलते हैं कि जो ग्रेटिशियस बेलर होगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी गुड्स को बेल करेगा, वो इंसान इज ऑब्लिग्ड according to section 155 to disclose only those faults which he as a bailor knew at the time of entering into a contract of bailment. On the other hand, if I talk about non-gratuitous bailment, तो क्योंकि आप bailment कर रहे हो, अपनी goods को bail करते हो to some person for consideration, something in return आप उससे लेते हो, वहाँ पे it doesn't matter आपको पता था, ये नहीं पता था at the time of entering into a contract, non-gratuitous contract of bailment, आपको चाहे पता है चाहे नहीं पता, एज अ बेलर फॉर कंसिडरेशन यू आर ड्यूटी बाउंड कि आपको रीजनेबल केयर रखनी थी, चाहे आपकी गुड्स में फॉल्ट थी, इसका आपको पता था या नहीं पता था, डिस्पाइट दैट फैक्ट यू आर बाउंड, ड्यूटी बाउंड कि यू हैव टू डिस्क्लोज इट. नहीं भी डिस्क्लोज करोगे तभी भी यू आर हेल्ड लायबल टू पे डैमेजेस और एल्स कॉम्पेंसेशन टू द बेली, क्योंकि उसको कोई ना कोई इंजरी सस्टेन हुई. सो गाइज, इन द नटशेल मैं यही बताना चाहती हूँ कि सेक्शन 150 को जो हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, तो सेक्शन 150 पैराग्राफ नंबर 1 प्रिसाइजली बहुत क्लियरली ये बोलता है कि जो नॉन ग्रेटिशियस बेलर होता है, आई एम सो सॉरी, जो ग्रेटिशियस बेलर होता है, यानी कि बेलमेंट विदाउट एनी कंसिडरेशन होती है, वहाँ पे बेलर की, ग्रेटिशियस बेलर की ड्यूटी तो है अंडर सेक्शन 150 दैट ही हैज़ टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड, लेकिन ही इज ड्यूटी बाउंड
to disclose only those faults in the goods bailed of which the bailor himself knew, of which he himself was aware at the time of entering into a gratuitous contract of bailment. जो जिसे खुद ही नहीं पता उस चीज़ के लिए उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो डिस्क्लोज करे. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप एक नॉन ग्रेटिशियस बेलर हो, आप अपनी बेलमेंट के लिए पैसा ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कार किसी को रेंट पे दे रहे हो, वो पर्सन आपको 1000 रुपीज़ पर डे रेंट भी पे कर रहा है. सो वो जो उसने आपको रेंट पे किया उसने भी आपको कुछ दिया, उसकी कंसिडरेशन में आप अपनी नेग्लिजेंस उसको नहीं दे सकते. यू कैन नॉट सिंपली से कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी गुड में ये फॉल्ट है. सो वेदर और नॉट the bailor, non-gratuitous bailor, whether he knows or not of any fault in the goods which he has bailed to the bailor, despite that fact he is responsible for any injury, for any loss which is sustained to the bailee as a result of his own negligence. I hope I have made myself very clear. यही डिफ्रेंसिएशन है सेक्शन 150 में बिटवीन ड्यूटीज ऑफ अ ग्रेटिशियस एंड नॉन ग्रेटिशियस बेलर. दोनों में क्या होगा, देखो आपकी ड्यूटी इज टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स. अगर आपकी गुड्स में कोई ना कोई फॉल्ट है तो आपको पता है कि जब आप सामने वाले को अपनी गुड्स दोगे तो उसको कोई ना कोई इंजरी होगी. अगर कोई गुड अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, तो सामने वाले को उससे इंजरी होगी, वो तो आपको पता ही है. इट मीन्स इन एनी केस, चाहे हम ग्रेटिशियस बेलर की बात करें चाहे हम नॉन ग्रेटिशियस बेलर की बात करते हैं, दोनों केसेस में फॉल्ट है गुड्स में, इसीलिए इंजरी तो होगी बेली को. लेकिन ग्रेटिशियस अगर आप बेलर हो तो वहाँ पे ये देखेंगे कि बेली को अगर इंजरी हुई है तो क्यों हुई, क्योंकि आपकी गुड्स में फॉल्ट है. बट अगर आपको एज अ बेलर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अगर आपको उस फॉल्ट के बारे में पता था और आपने नहीं बताया, सिर्फ तभी यू आर ऑब्लिग्ड टू पे कॉम्पेंसेशन टू द बेली. अदरवाइज आपको लॉ जो है वो एग्जेम्प्ट कर देगा क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता था. लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन ग्रेटिशियस बेलर की, गाइस वहाँ पे ये नहीं होता. वेदर दिस पर्सन non-gratuitous bailor knew or not of any material faults in the goods bailed, he is responsible to pay compensation, to indemnify basically the bailee for any loss or for any injury that bailee has sustained due to this person's own negligence. क्योंकि जब आप अपनी कार रेंट पे देते हो 1000 रुपीज़ पर डे आप ले भी रहे हो, तो वो जो पैसा आपको देता है उसको वो उसने आपको दिया, तो आपने उसको समथिंग इन रिटर्न क्या दिया, आपने नेग्लिजेंस दी. यू कैन नॉट डू दैट. सो क्योंकि आप उससे पैसा क्लेम करते हो तो समथिंग इन रिटर्न आपको भी देना है. सो वहाँ पे आपका क्या होगा, समथिंग इन रिटर्न बेलर की तरफ से रीजनेबल केयर होगी. और फिर अगर आपको चाहे नहीं भी पता था फिर भी आपके पार्ट पे नेग्लिजेंस हुई एंड यू आर ऑब्लिग्ड कि आप उसको क्या करोगे, कॉम्पेंसेट करोगे. बट गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट यहाँ पे फॉल्ट्स का मतलब क्या है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग कि नॉट ऑल फॉल्ट्स आर टू बी डिस्क्लोज्ड. हर एक छोटी फॉल्ट बेलर बेली को बताए वो ज़रूरी नहीं है. बहुत चीज़ें होती हैं अनसब्सटेंशियल होती हैं, यूजुअल होती हैं, तो हर एक छोटी चीज़ को डिस्क्लोज करना इज़ नॉट द ड्यूटी और इट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 150. तो सेक्शन 150 क्लियरली बोलते हैं कि वही फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, बेलर को बेली को बताना. बेलर हैज़ टू डिस्क्लोज वही फॉल्ट्स टू द बेली जो किस तरीके की होंगी, उनकी क्या उन फॉल्ट्स की क्या नेचर होनी चाहिए. पहला, those faults must materially interfere with Bailee's use of those goods, and secondly it must expose Bailee to extraordinary risks. अब गाइज हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, वहाँ से आपको ये ग्रेटिशियस और नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट भी समझ आ जाएगी और फॉल्ट्स का पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा. अब गाइज अगर आपको ध्यान में हो, इन माई वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन सेक्शन 148 हमने गुड्स बेल्ड की क्या इलस्ट्रेशन ली थी, कार. मैंने आपको बताया था कि जो बेल्ड है यहाँ पे जो बेलमेंट कौन करेगा, हमेशा बेलर करेगा, क्योंकि बेलर इज द ट्रू ऑनर ऑफ दोज गुड्स एंड ही इज द ओनली पर्सन केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. एंड गुड्स का मतलब क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी. सो जो आप गुड्स को बेल करते हो वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होगी और वो हमेशा बेलर करेगा. एंड दिस मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर्म्स द एंटायर सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. आई होप ये आपको पता है. अब यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में बिल्कुल फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमने ली थी कार की, तो कार की इलस्ट्रेशन को आगे लेके चलते. फॉर एग्जाम्पल गाइज, आई हैव गिवन अ कार ऑफ माइन टू अ फ्रेंड. मैंने अपनी कार, आई एम एन ओनर ऑफ दैट कार, सो आई हैव बिकम अ बेलर. मैंने अपने फ्रेंड को कार दी ग्रेटिशियसली विदाउट एनी रेंट. मैंने कहा कि यू वांट टू टेक इट टू अ मैरिज फॉर अ डे और सो यू कैन टेक इट. जब आपका स्पेसिफिक पर्पस एकम्प्लिश हो जाएगा आप मुझे वो रिटर्न कर देना. अब गाइज यहाँ पे क्या होगा, आई हैव बेल्ड दैट कार ऑफ माइन ग्रेटिशियसली टू माई फ्रेंड. अब गाइज एक जगह तो मुझे पता है कि मेरी कार की जो ब्रेक्स है वो फेल्ड हैं. इट मीन्स बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरी कार की फॉल्ट्स हैं
गुड्स बेल्ड फॉर एग्जाम्पल कार, उसमें जो फॉल्ट है वो एक ऐसी फॉल्ट है विच विल मटीरियली इंटरफेयर विद बेलीज यूज ऑफ दैट कार। अगर कार की ब्रेक्स जो होंगी वो फेल होंगी, सो डू यू थिंक कि कार को चलाने का कोई फायदा होगा? नहीं। एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट आई एम एक्सपोजिंग दैट फ्रेंड ऑफ माइन और बेली इन दिस केस टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क। मुझे पता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क है उसकी लाइफ को एंड टू हिज प्रॉपर्टी, टू हिज पर्सन, इफ आई विल नॉट डिस्क्लोज इट। सो वही बोलते हैं कि जो ड्यूटी होगी ग्रेटिशियस बेलर की, फॉर एग्जाम्पल मी इन दिस केस, मेरी ड्यूटी क्या रहेगी कि आई हैव टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड टू माई फ्रेंड, बट वही फॉल्ट्स ऑफ विच आई एम अवेयर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कि ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आपको देखो फॉल्ट्स क्या होंगी, मैं उस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि फॉल्ट्स वही होंगी, एबनॉर्मल अनसब्सटैंशियल फॉल्ट्स की बात नहीं होती है। उन्हीं फॉल्ट्स को डिस्क्लोज करना एक बेलर की ड्यूटी होती है विच मटीरियली इंटरफेयर्स विद द यूज ऑफ दैट गुड विच हैज बीन बेल्ड और एक्सपोजेज द बेली टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क। मटीरियली इंटरफेयर का मतलब ही क्या है कि अगर कार की ब्रेक्स नहीं चलेंगी तो कार को चलाने में इंटरफेरेंस होगी, कार को चलाने में इंटरफेरेंस होगी। मैंने आपको अपनी बाइसिकल दी, बाइसिकल कि अगर ब्रेक्स नहीं काम करती है या फिर उसके टायर पंचर है तो वहाँ पे क्या होगा, इट विल मटीरियली इंटरफेयर इन द यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड विच आई हैव बेल्ड टू यू, यानी कि नुकसान होने की बहुत हाई चांसेस हैं। सो जब मुझे पता है कि देर आर वेरी हाई चांसेस, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंजरी बीइंग सस्टेन्ड बाय द बेली डिस्पाइट नोइंग दैट फैक्ट एज अ बेलर, आई एम अवेयर ऑफ इट। ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में मुझे पता है कि कार की ब्रेक्स फेल्ड है, दे आर क्वाइट लूज। सो यहाँ पे मुझे पता है कि एक ऐसी फॉल्ट है विच विल मटीरियली इंटरफेयर इन द यूज ऑफ दैट कार, मोरओवर इट इज एक्सपोजिंग माई फ्रेंड टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क। आई नो दैट, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट अगर मैं उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करूँगी तो वहाँ पे आई विल बी ऑब्लिग्ड अंडर सेक्शन 150 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट आई हैव टू इंडेमनिफाई माई फ्रेंड। मुझे उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी, जो उसको इंजरी, जो उसको लॉस सस्टेन हुआ उसके लिए कॉम्पेंसेशन मुझे ही देनी होगी, बट ओनली इफ आई एम एज अ बेलर अवेयर ऑफ इट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। बट इफ आई टॉक अबाउट नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, यहीं पे अगर मैं अपनी कार किसी इंसान को हायर पे दे दूँ कि आप ले जाओ, अपने 7 डेज के लिए लेके जानी, 7000 रुपीज़ मुझे आप दे देना, 1000 पर डे। अब मैं उससे 7000 रुपीज़ ले रही हूँ, यहाँ पे सिंस इट इज़ अ नॉन ग्रेटिशियस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इट मीन्स इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फॉर कंसिडरेशन फॉर रिवॉर्ड फॉर हायर। वहाँ पे जो वो इंसान मुझे पैसा दे रहा है 7000 रुपीज़, उस चीज़ के लिए, उस कंसिडरेशन के लिए मैंने क्या दिया उसको, समथिंग इन रिटर्न। इट शुड बी अ रीजनेबल केयर ऑन माई पार्ट। बाद में आई कैन नॉट टेक अ डिफेंस, अगर बेली को कुछ होता है, गॉड फॉरबिड, आई कैन नॉट टेक अ डिफेंस कि यहाँ पे मुझे इसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि मैं एक नॉन ग्रेटिशियस बेलर हूँ। तो एक तरीके से आप कह लो कि ये मेरा काम है, एक तरीके से इट इज़ माई वर्क कि मैं अपनी जो कार्स है वो लोगों को हायर पे देती रहती हूँ। इट मीन्स आई शुड बी वेरी मच केयरफुल, मुझे एक रीजनेबल केयर रखनी होगी। एंड आई कैन नॉट से कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि उसने मुझे 7000 रुपीज़ दिए, उसके बदले मुझे भी उसको रीजनेबल केयर देनी होगी। सो देयर इज़ अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ड्यूटीज ऑफ अ ग्रेटिशियस एंड नॉन ग्रेटिशियस बेलर। अपनी कार मैंने दी हायर पे, मुझे नहीं पता कि मेरी कार की ब्रेक्स जो फेल हैं, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट क्योंकि मैंने एक नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट करी तो आई हैव टू कॉम्पेंसेट दैट पर्सन। बट यही अगर सिचुएशन ग्रेटिशियस बेलमेंट में होती तो आई माइट नॉट हैव बीन हेल्ड लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन टू द बेली, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था, बायर वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट और दिस फॉल्ट, मटीरियल फॉल्ट बेसिकली इन द गुड्स बिल्ड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो आई होप गाइज आपको सेक्शन 150 क्लियर हो चुका है। इसमें हमने फॉल्ट्स की बात करी कि किस तरीके की, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ अ फॉल्ट विच इज टू बी डिस्क्लोज्ड बाय द बेलर टू द बेली, एंड वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार। उसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको यूज़ करी थी सेक्शन 148 में, और हमने ये भी देखा कि हाउ कम सेक्शन 150 ब्यूटिफुली डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन ड्यूटीज ऑफ अ ग्रेटिशियस एंड नॉन ग्रेटिशियस बेलर। और ये डिफ्रेंसिएशन क्यों है मैंने आपको वो भी बताया, क्योंकि वो कंसिडरेशन होती है, तो समथिंग इन रिटर्न मुझे उसको भी देना है विच इज़ अ ड्यू केयर। इट मीन्स इन द नटशेल आई कैन से कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है विच इज़ टू बी टेकन बाय अ नॉन ग्रेटिशियस बेलर इज मच मोर दैन केयर विच इज़ टू बी टेकन बाय अ ग्रेटिशियस बेलर। इट इज़ मच मोर, यानी कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ केयर मुझे इतनी रखनी है तो इट इज़ मच मोर, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ केयर है विच इज़ टू बी टेकन इफ आई एम अ नॉन ग्रेटिशियस बेलर, यानी कि इट शुड बी समथिंग मोर देन मेयर नेग्लिजेंस। आई कैन नॉट से कि मुझे नहीं पता था,
आई ऑट टू हैव नोन अबाउट इट, मुझे पता होना चाहिए था, ये बात होती है. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. सो टॉकिंग अबाउट सेक्शन 159 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगैन यहाँ पे भी हम कार की इलस्ट्रेशन को लेके चलेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ बेलर इज दैट ही इज ड्यूटी बाउंड टू इंडेमनिफाई द बेली. इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? नुकसान की भरपाई करना. इंडेमनिटी चैप्टर नहीं देखा, प्लीज गो एंड वॉच दैट चैप्टर ऑल्सो. इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना. सो आई एम अ बेलर एंड आई एम ड्यूटी बाउंड. ड्यूटी बाउंड मतलब सेक्शन 159 मेरे पे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है. आई एम ड्यूटी बाउंड टू इंडेमनिफाई द बेली. ठीक है, व्हेन देयर इज रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेटिशियसली. गाइस इस चीज़ को भी आप देखो, अगर मैं लेंड करती हूँ, किसी को लेंड करने का मतलब है कि आई हैव बिकम अ लेंडर एंड सामने वाला हैज़ बिकम अ बोरोवर. तो आपको इस सेक्शन में सबसे पहले तो ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे, लेंडर एंड बोरोवर. आई एम लेंडिंग इट टू यू एंड यू आर बोरोइंग इट, सो यू हैव बिकम अ बोरोवर, आई हैव बिकम अ लेंडर. और मैं कैसी लेंडर बन चुकी हूँ? ग्रेटिशियस लेंडर हूँ. ग्रेटिशियसली साफ साफ यहाँ क्लियरली लिखा है. ग्रेटिशियसली मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपनी चीज़ आपको दे दी. यानी कि लेंडर यहाँ पे बेलर है और उसने ग्रेटिशियसली अपनी गुड्स को किसको दे दिया? बेली को दे दिया. बट गाइज यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, जब मैंने अपनी कोई भी गुड आपको दी, मैंने अपना फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन अ कार, आई हैव लेंट अ कार ऑफ माइन टू यू ग्रेटिशियसली. अब वो मेरी चीज़ है, मैं कभी भी आपसे वापस ले सकती हूँ. बेशक मैंने आपको स्पेसिफिक पर्पस से स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए दी हो, लेकिन जब तक मैं आपसे पैसा नहीं लेती उस चीज़ के लिए, जब तक मैंने नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट नहीं करी है, तब तक वो चीज़ मेरी है. आई कैन रिस्टोर इट बैक एट एनी टाइम. मैं रेस्टिट्यूशन कभी भी कर सकती हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन एक समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल गाइज, आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन मैंने उसको क्या किया, ही सेज इट आई वॉन्ट टू टेक दिस कार फॉर 7 लॉन्ग डेज. 1 हफ्ते के लिए मुझे कार लेके जानी है. आई सेड ओके, तुम ग्रेटिशियसली ले जाओ. अब यहाँ पे आप देखो, आई एम लेंडिंग दैट कार ऑफ माइन. गुड्स में यहाँ पे हम कार की इलस्ट्रेशन ले रहे हैं. आई हैव लेंट दैट कार ऑफ माइन ग्रेटिशियसली टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि यहाँ पे बेली है. मैंने उसको क्या किया, 7 डेज के लिए ग्रेटिशियसली विदाउट एनी कंसिडरेशन उसको कार दे दी. अब गाइस 7 डेज निकल रहे हैं. फर्स्ट डे पे एक्सपेक्टेड मार्केट रेट क्या है? देखो, अगर वो मार्केट से लेके जाता, कैब करता, तो उसको 1000 रुपीज़ देने पड़ते. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनने इस इलस्ट्रेशन को, एक्सपेक्टेड है 1000 रुपीज़, यानी कि अगर वो मार्केट फेयर के अकॉर्डिंग देखे तो उसके 7 डेज के 7000 रुपीज़ लगते. मैंने उसको क्या कहा कि यू डू नॉट हैव टू गो टू द मार्केट, मार्केट फेयर तुम पे करोगे, तुम मेरी कार ले जाओ. सो आई हैव लेंट दैट कार ऑफ माइन ग्रेटिशियसली टू अ फ्रेंड ऑफ माइन हु हैज़ बिकम अ बेली इन दिस केस फॉर 7 लॉन्ग डेज. बट वट हैपन्ड इज, एक दिन बाद ही मुझे मेरी कार की जरूरत पड़ गई. सिंस आई हैव ओनली अ सिंगल कार, मैंने कहा कि आई वॉन्ट माई कार बैक. यानी मैं क्या कर रही हूँ? रेस्टिट्यूशन कर रही हूँ, रीस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेटिशियसली. मैं क्या कर रही हूँ? रीस्टोरेशन कर रही हूँ, वापस ले रही हूँ ऑफ वॉट? गुड्स ऑफ दैट कार विच आई हैव लेंट ग्रेटिशियसली टू अ फ्रेंड ऑफ माइन. तो मैंने उसको कहा 1 दिन के बाद मुझे मेरी कार वापस करो. अब मैंने अपनी कार तो वापस ले ली, अभी भी 6 डेज बाकी हैं और मेरे फ्रेंड को 6 डेज के लिए कार अभी भी चाहिए. सिंस आई कैन नॉट हेल्प हिम, तो उसको क्या करना पड़ा? मार्केट में जाना पड़ा और उसको मार्केट फेयर इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट, जब उसने कैब करी या टैक्सी करी, उसको 1200 रुपीज़ पे मिला. अब गाइज देखो, अभी वो 1200 रुपीज़ पे करेगा 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, यानी कि रिमेनिंग 6 डेज. 7 डेज के लिए उसको मैंने दी थी, 1 दिन के लिए मैंने उसको ग्रेटिशियसली दे दी. द वेरी नेक्स्ट डे मैंने उसे वापस ले ली. इट मीन्स जो रिमेनिंग 6 डेज रह गई उसको 1200 के रेट पे मार्केट से लेना पड़ा. नो इफ़ यू मल्टीप्लाई इट, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो वो 7200 रुपीज़ बनेंगे. अब आप एक चीज़ देखो कि अगर वो पहले दिन से ही मार्केट से लेता, पहले दिन से ही अगर वो मार्केट से खरीदता, तो उसको मार्केट फेयर पड़ता 1000 रुपीज़ पर डे, विच अमाउंट्स टू 7000 रुपीज़ फॉर अ वीक. मैंने क्या कहा, तुम ग्रेटिशियसली ले जाओ, मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है. बट मैंने क्या किया, अगले ही दिन अपनी गाड़ी वापस ले ली. यानी कि फर्स्ट डे का तो 1000 रुपीज़ उसने बचा लिया. इन अ वे, 1 दिन का, पहले दिन का तो 1000 रुपये उसका बच गया, लेकिन जो रिमेनिंग डेज 6 डेज रह गए उसमें उसको 1200 रुपीज़ ईच, 1200 रुपीज़ पर डे देना पड़ा, विच अमाउंटेड टू रुपीज़ 7200. अब यहाँ पे उसको एक तरीके से तो नुकसान हो गया. मार्केट रेट पे खरीदा तो 1 हफ्ते का 7000 लगता, मुझसे लिया, लेकिन आई टुक इट बैक. मैंने रेस्टिट्यूशन कर ली ऑफ गुड्स लेंट ग्रेटिशियसली बैक, वापस ले लिया मैंने. अब उसको क्या करना पड़ा, बाकी दिन के लिए ऑन द स्पॉट कार खरीदनी पड़ी, इसीलिए उसको मार्केट फेयर थोड़ा डबल मिला, तो क्वाइट मोर, तो उसके लगे 7200. अब गाइज अब एक तरीके से देखो तो उसको 200 रुपीज़ का क्या हुआ? नुकसान हुआ. 200 रुपीज़ का क्या हुआ? उसको नुकसान हुआ. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि इलस्ट्रेशन किस तरीके से काम कर रही है. अब मैंने क्या किया था, अपनी गुड्स को ग्रेटिशियसली लेंट किया था अपने फ्रेंड को. क्योंकि मैंने ग्रेटिशियसली किया था, बेशक फॉर सम स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेसिफिक पीरियड दिया था. स्पेसिफिक टाइम 1 वीक का था, स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक टाइम एंड पीरियड 1 वीक का था, एंड स्पेसिफिक पर्पस क्या था कि तुम मैरिज सेरेमनी अटेंड कर लो और वापस से मुझे ला के कार दे देना.
although I have lent it gratuitously for some specific period and for specific purpose, but क्योंकि वो gratuitously था, मैंने कौन सा पैसा लिया, ultimately owner तो मैं हूँ, goods तो मेरी, so I can restore it at any time. I may ask Bailey at any time कि मुझे मेरी चीज़ वापस कर दो, और वो देगा. He cannot deny, वो मना नहीं कर सकता क्योंकि मैंने gratuitously दिया था, अब मैं उसको वापस मांग रही हूँ. He has to restore it. But guys, अगर इस सारी सिचुएशन के कारण जो मैंने आपको समझाया, अगर इस सिचुएशन के कारण ऐसा कुछ क्रिएट हो गया कि बेली को नुकसान हो गया, यानी कि जो उसको बेनिफिट डिराइव हुआ वो बहुत कम था देन लॉस ओकेजन्ड बाय दैट पर्सन. अब उसको वैसे देखा जाए तो पहले दिन उसको 1000 रुपीज़ का बेनिफिट भी हुआ, मार्केट से खरीदा तो 1000 रुपीज़ पहले दिन के जाते, मैंने उसको ग्रेटिशियसली दे दिया पहले दिन का तो उसको 1000 रुपीज़ बच गया. लेकिन जो मेरा एक्ट था उसका सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि उसके 200 रुपीज़ एट दी एंड ज़्यादा लग गए. यानी कि बेनिफिट डिराइव्ड बाय दिस पर्सन, जो बेली है बेसिकली, उसका जो बेनिफिट उसको मिला इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू लॉस ओकेजन बाय दैट पर्सन. लॉस ज़्यादा हो गया, बेनिफिट उसको कम मिला. तो जितना इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन होगा, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज़ इन दिस इलस्ट्रेशन, उसको बेलर को उतनी चीज़, उतना डिफ्रेंसिएशन इंडेमनिफाई करना होगा बेली को. सो आई होप गाइज आपको समझ आ चुका है कि क्या लिखा है कि ही इज़ ड्यूटी बाउंड, बेलर इज ड्यूटी बाउंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 159 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट ही हैज़ टू इंडेमनिफाई. इंडेमनिफाई मतलब जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी होगी. नुकसान कितना हुआ, 200 रुपीज़ का नुकसान हुआ था, तो ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू इंडेमनिफाई द बेली. बेली को वो डेफिनेटली इंडेमनिफाई करेगा, उसके नुकसान की भरपाई करेगा व्हेन देयर इज रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेटिशियसली. मैंने अपनी गुड्स को, फॉर एग्जांपल कार को लेंट किया था, आपको दिया था, ग्रेटिशियसली दिया था, बट क्योंकि मैंने ग्रेटिशियसली दिया था तो मैं कभी भी, ऑल्दो आई हैव लेंट इट फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, डिस्पाइट दैट फैक्ट क्योंकि मैंने ग्रेटिशियसली दिया था तो वो अल्टीमेटली चीज़ मेरी है. आई कैन आस्क यू टू रिस्टोर इट बैक टू मी एट एनी टाइम एंड यू कैन नॉट डिनाई, क्योंकि ऑनरशिप मेरे पास है तो आपको वो पोजेशन मुझे वापस देनी होगी क्योंकि आप मुझे उसके लिए कोई पैसा नहीं पे कर रहे हो. सो आई हैव अ बेटर टाइटल, मैं कभी भी आपसे मांग सकती हूँ, आप मुझे दोगे. बट अगर इस सिचुएशन के कारण, मेरे इस एक्ट के कारण अगर बेली को कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी इंडेमनिटी किसको करनी है, बेलर को करनी है. सो ही इज़ ड्यूटी बाउंड. और इसको ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन के साथ आई होप आई हैव मेड क्लियर कि किस तरीके से ये सेक्शन काम करता है. Talking about the very next section basically, which is section 164, it talks about yet another duty of a bailor, which is his duty when bailor has no title. Guys, बहुत बार क्या होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि only the bailor who is an owner, real owner of a good is capable of entering into a contract of bailment. वही इंसान contract of bailment में enter हो सकता है as a bailor जो किसी चीज़ का ट्रू ऑनर है. जिस इंसान के पास ऑनरशिप नहीं है वो इंसान किसी भी सिचुएशन में बेलमेंट नहीं कर सकता. बट मैंने आपको तब भी कहा था कि बहुत बार होता है कि जिस इंसान के पास कोई टाइटल नहीं भी होता और एल्स वी कैन से डिफेक्टिव टाइटल होता है, वो भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल गाइज, मेरे पास कोई चीज़ मिली, आई माइट बी अ फाइंडर ऑफ सम गुड्स, कोई लॉस्ट चीज़ थी वो मुझे मिल गई, मैं उसकी ऑनर नहीं हूँ. आई हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. आई हैव मेड यू वेरी क्लियर, जब हमने इनवॉलंटरी बेलमेंट किया था, हमने काइंड्स ऑफ बेलमेंट में इनवॉलंटरी बेलमेंट किया था, मैंने आपको बताया था कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है वो कौन होता है, वो इंसान ऑनर नहीं होता. सो ही आउट ऑफ नो वेयर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विद द ट्रू ऑनर. तो बहुत बार ऐसा होगा कि मेरे पास डिफेक्टिव टाइटल है, मेरे पास उस चीज़ का कोई टाइटल नहीं है, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट वो चीज़ मैं आगे बेल कर देती हूँ. सपोज आई एम अ फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट डायमंड रिंग, वो डायमंड रिंग मुझे मिल गई, आई वॉज अ फाइंडर ऑफ दैट गुड, मैं ऑनर नहीं थी. डिस्पाइट दैट फैक्ट मैंने क्या किया, उसको आगे बेल कर दिया, उसकी पोजेशन किसी और को दे दी, बेली को दे दी. बेली वॉज समबडी हु वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ. गाइज, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि बेली वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ. बेली को पता ही नहीं है कि जो बेलर है उसका खुद का टाइटल डिफेक्टिव टाइटल है, कि वो तो ऑनर नहीं है. अगर तो उसको पता हो वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पे बेली ही वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ और उसे नहीं पता, ही वॉज एक्टिंग इनोसेंटली, उसे नहीं पता कि जो इंसान मुझे बेलमेंट कर रहा है इस रिंग की उसका खुद का ही डिफेक्टिव टाइटल है. तो वही कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान बेलर है who happens not to be the true owner of the goods bailed, वो true owner नहीं है, उसका एक defective title है, he has no title to enter into a contract of bailment. Despite that fact, as a bailor, as a true owner, he enters into a contract of bailment with the bailee who was acting in good faith. वो innocently act कर रहा था, उसे नहीं पता था. तो अगर as a result of जो disguisedness दिखाई है बेलर ने, अगर इस चीज़ के कारण बेली को नुकसान होता है तो बेलर is duty bound to indemnify him. अब हो सकता है ये रिंग मुझे मिली, आई वॉज अ फाइंडर ऑफ दैट रिंग,
कल को हो सकता है कि ट्रू ऑनर आ जाए और वो बेली को स्यू कर दे, वो बेली के अगेंस्ट केस फाइल कर दे कि दिस पर्सन इज समबडी जिसने क्या किया, मेरी रिंग को चुराया है। बेली क्या कहेगा कि मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंडर आई हैव had possession of this ring under a valid contract of bailment, बट जबकि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रू ऑनर है वो तो क्या करेगा, केस फाइल करेगा अगेंस्ट द बेली। बेली को लिटिगेशन चार्जेस देखने पड़ेंगे, अपने काउंसिल को हायर करना पड़ेगा, तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब कोर्ट में केस चले जाता है यू हैव टू बियर लिटिगेशन चार्जेस, सो यू हैव टू बियर सम और द अदर एक्सपेंसेस। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर ट्रू ऑनर कल को इस इंसान को, बेली को स्यू करता है, तो जो बेली का नुकसान हुआ, क्योंकि बेली वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ, उसे नहीं पता, हैड ही नोन अबाउट द ट्रू फैक्ट्स ही वुड हैव नेवर एक्टेड एज अ बेली, वो कभी बेली बनता ही ना। तो अगर इस सिचुएशन में बेलर की सारी गलती है, क्योंकि ही हैड नो टाइटल, उसके पास कोई टाइटल नहीं था, तो उसको बेलमेंट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने बेलमेंट करी एंड सामने वाला वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ। तो जो ये बेली है, ही इज ड्यूटी बाउंड कि अगर बेलर के कारण, जो बेलर है तो ही इज ड्यूटी बाउंड कि इसके कारण बेली का नुकसान हुआ, तो बेली के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, बेलर करेगा। बट गाइज एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर सपोज ये चीज़ मुझे मिली, ठीक है, आई वॉज हैविंग नो टाइटल, मैं तो फाइंडर ऑफ गुड्स थी, मैंने रिंग उठाई, मेरे पास उसकी पोजेशन आ गई, ऑनरशिप तो अभी भी नहीं आई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वो रिंग आगे किसी इंसान को दे दी, ठीक है, वो सिचुएशन अलग है कि ट्रू ऑनर आएगा, इस इंसान को स्यू करेगा, इसका खर्चा होगा, फिर ये पैसा क्लेम करेगा बेलर से, और बेलर मना नहीं कर सकता क्योंकि ही इज ड्यूटी बाउंड कि वो इंडेमनिटी करेगा सेक्शन 164 के अंडर। बट अगर इस सिचुएशन को हम अलग से देखें कि मैंने गुड्स को बेल कर दिया, अब मैंने उसको बेल किया बेली को, और बेली को मैं बोल रही हूँ कि ये मुझे वापस करो। सो गाइज ऐसी सिचुएशन में देखो, बेशक आई एम नॉट द ट्रू ऑनर, इट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड कि आई एम नॉट द ट्रू ऑनर ऑफ दीज गुड्स, बट सिंस मेरा टाइटल जो है वो उस इंसान के टाइटल से बेटर टाइटल है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आई हैव अ डिफेक्टिव टाइटल, मुझे पता है कि जो सबसे बेस्ट टाइटल होता है वो ऑनरशिप होती है, ऑनरशिप इज द बेस्ट टाइटल गाइज, ऑनरशिप जिसके पास होगी उसके पास बेस्ट टाइटल है। लेकिन यहाँ पे ऑनर कौन है वो हमें नहीं पता, वी आर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि यहाँ पे ट्रू ऑनर कौन है, हमें नहीं पता, वी आर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो जब मेरा टाइटल हुआ, इट इज़ बेटर दैन द टाइटल जो बेली के पास अभी करंटली है। तो यही कहा जाता है कि अगर मैं उसको कहूँगी कि मेरी गुड्स मुझे वापस करो, मैं ये कहूँगी कि ये जो गुड्स मैंने आपको बेल करी वो वापस करो, तो जो बेली है वो मना नहीं कर सकता कि आप कौन सा इसके ट्रू ऑनर हो, मैं आपको वापस नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिंस दिस पर्सन हैज़ नो टाइटल और ही हैज़ अ डिफेक्टिव टाइटल, तो जो मेरा टाइटल होगा एज अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, दो इट इज़ लोअर दैन द टाइटल ऑफ द ट्रू ऑनर, बट इट इज़ फार बेटर दैन द टाइटल विच दैट बेली हैज़। इट मीन्स जो टाइटल मेरे पास है वो बेली के टाइटल से बेटर है, बट इट इज़ नॉट बेटर ऑब्वियसली दैन द ट्रू ऑनर। तो जिस चीज़ का टाइटल मेरे पास नहीं है, आई कैन नॉट गिव दैट टाइटल टू द बेली। अगर मैं ऑनरशिप, सपोज मेरी ऑनरशिप होती तो मैं सामने वाले को दे देती, बेली को मैंने दे देना था, बट यहाँ पे आप देखो मेरी खुद की ही क्या है, ऑनरशिप नहीं है, आई हैव नो ऑनरशिप। सो इन दिस सिचुएशन व्हेन आई हैव अ डिफेक्टिव टाइटल, आई कैन नॉट ट्रांसफर दैट टाइटल ऑन टू सम अदर पर्सन। व्हेन आई हैव नो टाइटल, दिस पर्सन बेली कैन हैव नन, मेरे पास नहीं है तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो मुझे मना नहीं कर सकता कि मैं आपको चीज़ वापस नहीं करूँगा कि आप ट्रू ऑनर नहीं हो। ही हैज़ टू रिटर्न इट बैक टू मी सिंस उसका टाइटल इज़ नॉट बेटर देन आई हैव, और मेरा टाइटल इज़ नॉट बेटर देन दी ऑनर। ऑनर मांगेगा तो मुझे देनी होगी, एज अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मैं अपने पास नहीं रख सकती कि ये तो चीज़ मुझे मिली थी, नो, क्योंकि उसका टाइटल इज़ द टाइटल ऑफ ऑनरशिप विच इज़ द बेस्ट टाइटल वन कैन एवर होल्ड, मुझे उसको देनी पड़ेगी। लेकिन एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स मेरे टाइटल इज़ बेटर देन द टाइटल ऑफ दैट बेली जिसको मैंने बेलमेंट करी है, तो ही हैज़ टू रिटर्न दोज गुड्स बैक टू मी। वो क्योंकि मतलब ही हैज़ नो, आप कह लो कि अपॉर्चुनिटी की वो रख सकता है, क्योंकि जब मेरे पास ही टाइटल नहीं है, आई कैन नॉट ट्रांसफर एनी टाइटल डाउन टू हिम, जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो मैं उसको भी नहीं दे सकती ऑब्वियसली। तो ही हैज़ टू रिटर्न दोज गुड्स बैक टू मी, और वो नहीं, ये नहीं बोल सकता कि आपके पास तो टाइटल ही नहीं है। तो ये हम बेटर टाइटल्स की बात करते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि ड्यूटीज़ ऑफ अ बेलर 3 डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ कार की एग्जाम्पल लिया और कोई इलस्ट्रेशन की बात ही नहीं करी। यहाँ पे हमने बात है कि ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड, जो गुड्स को बेल किया है उनमें अगर कोई भी मटीरियल फॉल्स हैं तो यू आर ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज देम, बट देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन ड्यूटीज ऑफ अ ग्रेटिशियस एंड नॉन ग्रेटिशियस बेलर। Secondly, we talk about that you are duty bound as a bailor to indemnify the bailey. बेली के नुकसान की भरपाई करनी होगी, कब करनी होगी, जब आपने क्या किया, रिस्टोरेशन करी है ऑफ गुड्स लेंट ग्रेटिशियसली। गाइस इसको बेसिकली हम बोलते हैं प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन का मतलब होता है कि अभी टाइम पीरियड हैज़ नॉट बीन एक्सपायर्ड,
मैंने आपको एक हफ्ते के लिए अपनी कार दी थी, बट मैंने एक दिन बाद ही आपसे कार वापस मांग ली। आई कैन डू दैट क्योंकि मैंने ग्रेटिशियसली करा, बट मैंने क्या किया, प्री मेच्योरली टर्मिनेट कर दिया। टाइम खत्म होने से पहले ही मैंने टर्मिनेशन कर दी, और प्री मेच्योर टर्मिनेशन होने के कारण ये जो मैंने एक्ट किया प्री मेच्योर टर्मिनेशन, उस कारण आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस किस तरीके से हुआ कि जो बेनिफिट आपने डिराइव किया इट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू लॉस ओकेजन। सो ये जो डिफ्रेंसिएशन है वो मुझे उसकी इंडेमनिटी करनी होगी एज अ बेलर। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट विच इज ड्यूटी व्हेन बेलर हैज़ नो टाइटल। जब आपके पास कोई टाइटल ही नहीं है, डिस्पाइट दैट फैक्ट आपने बेलमेंट कर दी, तो वहाँ पे अगर सामने वाले को, बेली को कोई भी नुकसान होता है, ये जो गलत बेलमेंट आपने करी है ना, उसके कारण अगर सामने वाले को कोई भी नुकसान होता है, सो यू आर ड्यूटी बाउंड अंडर लॉ अंडर सेक्शन 164 दैट यू हैव टू इंडेमनिफाई द अदर पर्सन। उसको कॉम्पेंसेट करना है जो भी उसके लिटिगेशन और फॉर दैट मैटर एनी अदर एक्सपेंस अगर उसको इनकर हुआ है। सो गाइज, I hope I have made myself clear. Still, if you have any doubts related to any of these 3 sections, please feel free to comment in the comment box. And yes guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.